नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good afternoon everyone. सबको very very good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon. So हम Natties. मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है. Good afternoon. सबको very very good afternoon. कैशलेस इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, ड्रग एंड यूथ, स्वच्छ भारत भी देख लेते हैं. सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. खुश रहिए सगेशियस, खुश रहिए, आशीर्वाद दे दिया सबको. हैप्पी न्यू ईयर. सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. होपफुली सबने न्यू ईयर एंजॉय किया होगा. हैप्पी न्यू ईयर. खुश रहिए सिद्धांश. आत्मनिर्भर भी आत्मनिर्भर भारत भी करवा दूंगी. आई एम नॉट वेल. उसीलिए मैंने यूट्यूब, मुझे वही साइनस वाला प्रॉब्लम है, सीवियर हेडेक, फीवरिश, कफ, सब हो गया. साइनस का प्रॉब्लम हो गया, कफ कोल्ड हो गया, फीवरिश हो गया, हेडेक हो गया. इसीलिए मैंने यूट्यूब का बैच को रोक दिया. यूट्यूब का बैच कल से होगा. आज यूट्यूब का क्लास नहीं लिया था मैंने. यूट्यूब का क्लास नहीं लिया था. चलो 50 में 50 लाना है. आ जाएगा. ड्रग्स और यूथ पे सुनाना है. अच्छा, ड्रग्स और यूथ पे सुनाओगे? चलो सुनाओ मुस्कान. एक मिनट. कहाँ है? रेज योर हैंड में आइए, तब तो मुझे पता चलेगा ना. रेज योर हैंड में आइए मुस्कान. ड्रग्स और यूथ लिखा है आपने? ओके. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are. तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ, ड्रग एंड यूथ है ना. हाँ. Yes. Okay. Addiction is when a person is obsessed with something demon. When we think of addiction, a person can be addicted to anything, be it medicine, cigarettes, alcohol, drugs, or to some other person. One of the prevalent addiction is drug addiction. It is most common in youth or in the age group of 15 to 25 years. Drugs take you to hell disguised as heaven. It excites adrenaline's flow in a body for a while, and this leads to flow of dopamine, which excites us. There is a lot of upheaval going on in the life of a youth. Youth is going through a lot of disturbance nowadays. There is no serene in the life of a youth. They became agitated due to augment in competition in studies. Parents compare their child with others, living aloof due to job, media influences. Use of drugs and alcohols in movies may fuel teen drug abuse. They are not sagacious while choosing their friends, so they started taking drugs in the influence of wrong friends. In today's era, people have nothing to do with real ecstasy. They are very materialistic. They are only running behind money for luxurious life. Thus, they are suffering from perplexity, depression, etc. And to overcome this strain, they started taking drugs. Nuclear family is also a reason, as in joint family, there are many people to keep an eye on a kid. This also elongated due to fast-paced social transformation brought in society by rapid industrialization, urbanization, and rural-urban migration, and people are finding it difficult to cope with ever-increasing social pressure. According to recent survey by the National Institute on Drug Abuse, 39% of college students use marijuana, the highest level of use among college students in the past 3 decades, and 60% of high school students have consumed alcohol by the end of high school. 23% have consumed alcohol by 8th grade. They are also illicit medication. Nearly half of the college students use illicit drugs. This is pernicious, as if someone wants to stop this, he or she can't, because they become obsessed with this.
and this lead to impaired memory, respiratory problems, hallucination, paranoia, and faster heart rate, suicidal thoughts, etc. All these are drifting away our kids from their traditional roots. It doesn't just affect kids' life; it affects everyone's lives too. It is not only the problem of developing countries, but it is prevalent throughout the world. To efface this, there are rehabs and several programs, but the programs still persist. To expunge this awareness creation or prevention education program for youth is needed. Individual and societal amelioration is needed. Family support is must. Parents had better spend time with their children instead of running behind materialistic thing. We need to keep their pot boiling in sports. Drugs engulfed almost all the qualities of a kid. It is one of the most grave issue world is facing today because today's youth is the future. एक second. Because today's youth is the future of a country. We need to address the problem in broader sense. It should be tackled at national and international level on a broad base. Drugs use prevention is the best treatment and it costs less in lives and dollars. मैम बस ओके मुझे आपको ऐसे टाइटल्स अच्छे लगते हैं मैं कहीं आपका नाम देखा ग्रामेटिकल एरर्स मुझे ठीक है मुस्कान ओके ग्रामेटिकल एरर्स में खास करके मैंने टेंस का देखा अच्छा क्योंकि ये एक जनरल बात है सिंपल प्रेजेंट में जाना चाहिए और कई बार आप बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ लाइन्स को खुद से फास्ट लेके चलिए तो वो सब पे ध्यान देना ओके मैम बाकी ओवरऑल हाँ ठीक कुछ है ज्यादा या कम तो नहीं लिख दिया नहीं कितने वर्ड्स हैं आपने मैम आई थिंक 250 से ज्यादा ही लिखे हैं मैंने क्योंकि अगर आ गया तो भूलेंगे भी तो कुछ चीज इसलिए मैंने ठीक है कोशिश करना 250 से 300 हो जाए हाँ ठीक है मैम ठीक है ओके थैंक यू मैम हिंदी में भी लिखा है ना किसी ने हिंदी में भी लिखा है सोहम ने हिंदी में लिखा है हेलो मैम हेलो यस सोहम आपने हिंदी में लिखा है ना नहीं मैम मैं तो इंग्लिश में ही लिखता हूँ इंग्लिश में लिखा है ओके चलो हाँ बता हाँ ठीक है Drug addiction has become a great problem in our society nowadays. People of all age from 8 to 80 get involved into drug addiction. There are so many types of drugs are available in the market. सोहम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है थोड़ा सा तेज ठीक है There are so many types of drugs are available in the market, such as LSD, heroin, smack, brown sugar, etc. Though most of the drugs are banned in India, some people import them illegally from foreign countries and sell them in Indian markets. The young generation gets mostly affected by drug abuse. When boys and girls are on their teenage or about to attain their adulthood, frustrations caused from failure, confrontation from parents, and inability to fulfill their requirements compel them to consume drugs. Not only common people, celebrities often get involved into drug abuse, and this leads to their defamation. Now it is often that schools and college students are caught red-handed by police while consuming drugs and ruin their career with their own hands. Drugs like LSD make people feel living in paradise for a while, but they cause a very bad effect on nerves. Excessive consuming of drugs lead to death. Many people commit suicide as an aftermath of drug addiction. There are some remedies also. At first, the administration must be strict to stop the illegal imports of all drugs. Parents should be affectionate to their children who are on the threshold of adulthood. People who are already drug addicted need regular counseling in rehabs. 26 June is celebrated as Anti-Drug Day worldwide. In a word, every one of us should come forward to prevent this social evil. बस मैम इतना सही था. ओके क्या मतलब कितने वर्ड्स के हैं मुझे छोटा लगा मैम 250 है 252. 250 चलो बहुत अच्छे से लिखा है आपने मैं तो सिंपल इससे बहुत बड़ा था ये पर मैंने छोटा किया वर्ड्स तो बाधा हुआ है ना. हाँ लेकिन ध्यान रखना है कि एग्जाम में अच्छा सा लिखा आपने बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा है सिंपल ल्यूसिड Thank you, लैंग्वेज में अच्छा और कोशिश करना कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा लिख लेना है ताकि आपके एग्जाम पे तो कितने सारे पॉइंट्स छूटेंगे भी ना अच्छा ठीक है मैम. ठीक है मैं 250 से ज्यादा हो गया तो परेशानी नहीं होगी कोई. कोई परेशानी नहीं है 300 तक भी जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं अच्छा ठीक है. मुझे यही एक चिंता है कि अगर ज्यादा हो गया तो नंबर कम हो जाएगा. नहीं 300 तक लिख सकते हो ठीक है ठीक है चलो थैंक. अब मुझे बताओ कि किसने हिंदी में लिखा है पहले हिंदी देख लो निधि की पहली क्लास है मैं सूरज हिंदी में बोलेंगे ओके हेलो हाँ गुड आफ्टरनून मैम. यस गुड आफ्टरनून सूरज बोलिए मैम मैंने दो टॉपिक में लिखा हो हाँ, एक ड्रग्स एंड यूथ एंड मॉब लिंचिंग. वेरी गुड हिंदी में ही है ना यस मैम. ओके चलिए बोलिए मैम किसमें बोलूं? पहले ड्रग्स वाला बोलिए मैम सारा पॉइंट मेरा है मैं गूगल से भी कोई पॉइंट नहीं दिखाऊं Very जो good. अपने से है.
ठीक है मैम। मादक पदार्थ से तात्पर्य उन पदार्थ से है जिसे ग्रहण करने से नशा होता है तथा मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है, जैसे चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, शराब आदि। मादक पदार्थ का सेवन वर्तमान समय से नहीं बल्कि कई सौ वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। एक बार कोई अगर इसे लेता है तो उसका मन बार बार इसे लेने को करता है। ये एक बुरी लत के समान है। मादक पदार्थों के चंगुल में सबसे ज्यादा युवा लोग ही आते हैं तथा इसकी शुरुआत किशोरावस्था से ही हो जाती है। अनेक कारणों की वजह से लोग मादक पदार्थ लेना शुरू करते हैं। कुछ लोग अपने आप को कूल दिखाने के लिए लेते हैं तो कुछ लोग इसको ग्रहण करने के बाद चंद समय के लिए मिलने वाली एक अलग प्रकार का ऊर्जा तथा संतुष्टि के लिए लेना शुरू करते हैं, तो वहीं कुछ लोग गलत लोगों की संगत में आकर लेना शुरू करते हैं। आज किसी भी देश को सबसे ज्यादा हानि तब होती है जब उस देश का नागरिक या बोले युवा मादक पदार्थ जैसे गलत आदतों का शिकार हो जाता है। इसको बराबर लेने से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, समाज में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती है तथा देश का विकास दर भी घटता है। आज सरकार को चाहिए कि मादक पदार्थ जैसे गलत लत से नागरिकों को दूर करे, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। जो लोग इसकी तस्करी करते हैं उसे पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, लोगों को इससे होने वाली नुकसान से अवगत कराए तथा जो लोग इसके चंगुल में आ गए हैं उसे नशा मुक्ति केंद्र से जोड़े तथा उसे इन सब से बाहर निकालने में मदद करे, क्योंकि किसी भी देश को तेजी से विकास की ओर बढ़ने में सबसे ज्यादा उस देश का युवा वर्ग का हाथ होता है तथा अगर यही युवा गलत आदतों में पड़ेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। मैम इतने थे। ओके, और कितने वर्ड्स हैं आपके? मैम 320 वर्ड्स है। ओके, ये तो पता चल गया, आपने बिल्कुल अपने से लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा। अब चलो मॉब लिंचिंग बताना। मॉब लिंचिंग से तात्पर्य कानून या संविधान का पालन किए बिना किसी अपराध या बोले कथित अपराध के लिए किसी की हत्या करना है। मॉब लिंचिंग से आज पूरा विश्व परेशान है तथा भारत भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग के कई मामले भारत में देखने को मिले हैं। किसी भी देश के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है। मॉब लिंचिंग अक्सर धर्म तथा जातिवाद की आड़ में होता है। इसके कई मुख्य कारण हैं, जैसे कभी कानून व्यवस्था का अभाव, कभी गौ हत्या के मामले, कभी बच्चा चोरी का आरोप, तो कभी झूठी अफवाहों के फैलने की वजह से होती है। आज मॉब लिंचिंग के लगातार बढ़ने की वजह से हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कब कौन सा भीड़ उग्र हो जाए कुछ बोला नहीं जा सकता तथा इसी कारण कई लोग अकेला यात्रा करने में भी डरते हैं। कई बार तो बेकसूर लोगों की भी हत्या हो जाती है। इसका नुकसान लोगों के साथ साथ देश के विकास पर भी पड़ता है। आज बहुत सारी विदेशी कंपनियां मॉब लिंचिंग जैसे समस्या के कारण भारत में निवेश नहीं करना चाहती है तथा जो पहले से भारत में व्यापार कर रही है वे भी आज छोड़ रही है। इसका गहरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। आज भारत सरकार को चाहिए मॉब लिंचिंग पर कठोर से कठोर कानून बनाए। आजकल दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कई लोग दंगा फैलाने के लिए गलत वीडियो वायरल करते हैं तथा बिना वीडियो की सच्चाई जाने कई लोग उस पर विश्वास कर उग्र होकर हिंसक हो जाते हैं। अर्थात सरकार को इन सब पर भी उचित कदम उठाना चाहिए ताकि इन वीडियो के वायरल होने से पहले ही इन्हें मिटा दिया जाए। अतः जितनी ही जल्दी इस पर उचित कार्रवाई होगी उतनी ही जल्दी हम इन समस्या को खत्म कर सकेंगे। ओके, हो गया? यस मैम। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने एकदम अपने लैंग्वेज में लिखा है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पेपर सेटर को ये तो पता चल ही जाता है कि एकदम अपना लैंग्वेज है। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है। और इसको कैसे, मतलब वो तो चलो आपने बताया, पैराग्राफ्स में डाला होगा ना, कैसे रोका जाता है? यस मैम। पैराग्राफ्स में लिख, ठीक है मैम। ठीक है। मैम हाँ, कहीं पे कोई पॉइंट ऐसा नहीं ना जो छूट जा रहा है? अभी हम लोग मॉब लिंचिंग का और भी डिस्कस करेंगे, तब पता चलेगा और क्या, क्योंकि एक स्टूडेंट से नहीं पता चलेगा ना, सब स्टूडेंट जब लिख के आएंगे तो और भी क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप एकदम क्लास में रहना, ऐड कर लेना और क्या क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो अब आज पहले तो फिर मैं और भी सुनूंगी, सबका सुनूंगी। पहले आप स्वच्छ भारत क्या क्या लिख रहे हो, इंक्रीज इन बीजेपी रेजिम, ये सब मना किया है ना, ये सब नहीं लिखना है, सब डायरेक्टली यूएफएम हो जाएगा। आगे पहले स्कीम्स बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, स्कीम्स वगैरह चाह रहे हो? अभी ऐसे एक देख लेते हैं, पहले स्वच्छ भारत वाला भी ऐसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास कोविड वाला करेंगे, कोविड वैक्सीनेशन। ये स्वच्छ भारत ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लेanलीनेस। स्वच्छ भारत एक बहुत स्कीम बता दूंगी।
आत्मनिर्भर भारत चाह रहे हैं ना, सेल्फ रिलायंट इंडिया। चलो अब ध्यान से स्वच्छ भारत भी देख लोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्वच्छ भारत लिख के आओगे। स्वच्छ भारत वाला टॉपिक जब भी स्टार्ट करना है ना, क्योंकि ये तो मेन अभियान महात्मा गांधी का है, तो महात्मा गांधी के कोट से ही स्टार्ट करना। सेल्फ आत्मनिर्भर वाला भी मैं नेक्स्ट क्लास करवाऊं, सेल्फ रिलायंट, सबको वही करना है। महात्मा गांधी वंस सेड, महात्मा गांधी ने बोला था, सैनिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी ने ये बोला था, और ये भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू अ प्रोवर्ब, क्लेनलीनेस, ये भी लिख सकते हो। एक कहावत के अनुसार क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जहां सफाई रहती है वहां भगवान का वास होता है, ये भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू अ प्रोवर्ब, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई के बारे में, या महात्मा गांधी का ये कोट भी आप लिख सकते हो। ओके, क्या है, नमामि गंगा आ सकते हैं, हाँ, ये सब नमामि गंगा सब आ सकते हैं, गंगा में कुछ यूएफएम नहीं लगेगा। ओके, position in the list of highest number of open defecation villages, followed by Tamil Nadu. Okay, Abhishek, you can put this in your essay. महात्मा गांधी ने कहा है, sanitation is more important than independence. Sanitation independence से भी ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान is a स्वच्छ भारत mission led by the government of India to make a clean India. पहले तो लिखोगे स्वच्छ भारत अभियान होता क्या, ठीक है। This campaign was launched officially by the government of India on 145th birthday anniversary of the great person Mahatma Gandhi. Gandhi was born on 2nd October to क्या, अच्छा नहीं, Gandhi was नहीं, great person Gandhi on 2nd of October 2014. 2014 में इनका 140th anniversary था. It is implemented to fulfill the vision and mission of clean India one day. तेलंगाना में जंगली आदमी ज्यादा रहते हैं. What do you mean by जंगली? I am not able to understand कि जंगली का मतलब क्या है. जंगली आदमी ज्यादा रहते हैं. इंदौर still remain at the first position in cleanliness. स्कीम को लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर को. गांधी जी का 140th बर्थ एनिवर्सरी था, 145th बर्थ एनिवर्सरी. इसका मिशन पहले तो बता दोगे स्वच्छ भारत है क्या. एक कोटेशन से स्टार्ट करना. आपको गूगल पे ना बहुत सारे प्रोवर्ब्स और कोटेशंस मिल जाएंगे जो सफाई पे रिलेटेड है. सिंपल लैंग्वेज में लिख देना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. या गांधी जी ने कहा था कि सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, आजादी से भी ज्यादा जरूरी है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से भी ज्यादा जरूरी सैनिटेशन है. सब बता देना कि ये स्वच्छ भारत का मिशन का मेन उद्देश्य क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया था. गांधी जी के बर्थडे पे इट वाज लॉन्च्ड. it is implemented to fulfill the vision of mission of clean India one day. It was launched specially on the birth anniversary of Gandhi ji. क्यों? क्योंकि as he had dreamt and was very keen to make his country a clean city. Swachh Bharat Mission Abhiyan SBA is one of the largest cleanliness drives in the world. With a workforce of 3 million government employees लगे हुए हैं स्वच्छ भारत में, who are directly or indirectly attached to this program. पूरा स्वच्छ भारत का इंट्रोडक्शन है क्या, उद्देश्य क्या है, कब लॉन्च किया गया था. और फिर दिया है, this campaign has initiated people globally towards the cleanliness. Teachers and students of the school are joining this Clean India campaign very actively with great fervor and charm. पूरे जोश के साथ कर रहे हैं. हाँ, स्वच्छ भारत मैंने पहले तो 2016 में स्वच्छ भारत CHSL में आ चुका है, तो वैसा कुछ नहीं है. ठीक है, एक बार आ गया तो वो नहीं आएगा, क्योंकि देखो स्वच्छ भारत में जो आप स्वच्छ भारत में क्लेanलीनेस पढ़ रहे हो ना, तो आपके एग्जाम में सैनिटेशन, क्लेanलीनेस कोई भी टॉपिक आ गया तो आप स्वच्छ भारत वाला पॉइंट्स भी डाल सकते हो. ओके भूपेंद्र, CHSL में ये आया हुआ है. हम लोग अपनी प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं, प्रीवियस से जैसे जैसे आ चुका है, तो हम लोग हाँ एक कदम, मतलब जब भी इंडिया और सैनिटेशन की बात हो रही है ना, तो स्वच्छ भारत से आप बहुत सारे पॉइंट्स को डाल सकते हैं. सैनिटेशन इन इंडिया बहुत सारा डाला जा सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है. टॉपिक बदल के दे देंगे, आपको डालना है. द एम ऑफ द मिशन इज टू कवर, जो एम है ना इस मिशन का, जो एम है, हो सकता है स्वच्छ भारत सफाई से रिलेटेड. देखो सारे चीज लिंक्ड होते हैं. अगर सफाई से रिलेटेड हो सकता है ना, कुछ ऐसे आ गया, सफाई से रिलेटेड कोई लेटर आ गया, तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें भी डाल सकते हैं, लेटर में भी डाल सकते हैं. बहुत सारा करके जाना है. अभी हमने गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब इतना टॉपिक्स हमने कर लिया है ना, गैजेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो अब ये सारे में का पॉइंट एक दूसरे में आप आराम से लिख सकते हो, पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं जब नहीं समझ में आए.
हमने विमेन से सब कर लिया है, विमेन का एजुकेशन कितना जरूरी है, हमने विमेन को एम्पावर करने के लिए भी एजुकेशन जरूरी है, फिर विमेन का वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन, तो विमेन से रिलेटेड और क्या टॉपिक आएगा, जितना आएगा इसी में से आएगा, सब एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं, पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं. द एम ऑफ द मिशन, बिटकॉइन भी कर लिया है. द एम ऑफ द मिशन इज टू कवर ऑल is to cover all the rural and urban areas. और ये मिशन में ना सिर्फ रूरल एरियाज ही नहीं है, कवर ऑल रूरल और अर्बन एरियाज सब है. टू प्रेजेंट दिस कंट्री एज एन आइडियल कंट्री, वर्ल्ड के सामने अपने कंट्री को परफेक्ट कंट्री प्रोड्यूस करने के लिए एम ऑफ द मिशन रूरल और अर्बन दोनों का, शहरी और गांव दोनों क्षेत्र का है. द मिशन हैज टारगेटेड एम्स लाइक एलिमिनेटिंग ओपन, बाहर जाके शौच नहीं करना है, कन्वर्टिंग इन सैनिटरी टॉयलेट्स इनटू पोर फ्लश टॉयलेट्स, eradicating manual scavenging, complete disposal and reuse of solid and liquid waste, bringing the behavioral changes of to people and motivate health practices, spreading cleanliness awareness among people, strengthening the cleanliness systems in urban and rural areas, as well as creating user-friendly environment for all the private sectors interested for investing in India for cleanliness. Promote करना है all the private sectors जो cleanliness को इंडिया में promote करना चाहते हैं. Points include कर सकते हो. Yes. ये सब ऐड कर दोगे और अपने से भी ऐड कर लेना, ऐसा थोड़ी यही लिखोगे. The completion of this mission would directly draw the attention of business investors in India. Enhance the, अगर ये सब होगा तो मतलब स्वच्छ भारत को थोड़ा सा इकोनॉमिक भी जोड़ दोगे, इकोनॉमिक में भी जोड़ दोगे. Yes. Draw the attention of business investors in India. Enhance, invest करने लोग आएंगे, GDP growth होगा, टूरिस्ट भी आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्रिंग टूरिस्ट आएंगे, ये सब होगा तो वैरायटी सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा. हेल्थ पे जो खर्च हो रहा है जरूरत से ज्यादा वो रुकेगा अगर सफाई रहेगी. डेथ रेट विल रिड्यूस एंड रिड्यूस डेडली डिजीजेस रेट एंड मेनी मोर. क्लीन इंडिया वुड ब्रिंग मोर टूरिस्ट एंड एनहांस इट्स इकोनॉमिकल कंडीशन. ठीक है, इकोनॉमिक नहीं लिखो, इकोनॉमिक लिखो, इकोनॉमिकल तो किफायती होगी. स्वच्छ भारत अभियान इज इंडीड सक्सेसफुल. अब ये स्वच्छ भारत कितना सक्सेसफुल है ये सब लिखो. is indeed successful in acknowledging the unhygienic conditions in India. Instead of ignoring the sanitation issue, working towards clean India is undoubtedly a good thing. We can say Swachh Bharat Abhiyan is a nice welcome to the clean and green India till 2019. As we all have heard about the most famous proverb that cleanliness is next to godliness. So we can surely say that Clean India campaign, that is Swachh Bharat Abhiyan, will bring godliness all over the country in few years if it is followed by the people in effective manner. अगर इफेक्टिव मैनर से लोग इसको फॉलो करते हैं. So the cleanliness activities to warm welcome the godliness have been started, but do not need to be ended. End नहीं करना if we really want godliness in our lives forever. A healthy country and a healthy society need its citizens to be healthy and clean in every walk of life. हर walk of life में cleanliness होना चाहिए. मैंने 30+ essays पे लिख कर प्रैक्टिस किया है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अब बताओ कि और क्या क्या लिखा, अरे क्या हो गया, और क्या क्या लिखा जा सकता है. चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर तो शायद मैंने करवा दिया है, चाइल्ड लेबर तो करवा दिया है. अब मुझे आप बताओगे कौन और क्या क्या लिखा जाता है. ढाका इज क्लीनलीनेस, ये ढाका कहाँ पे है भाई. ढाका इज क्लीनलीनेस, कौन वाला ढाका की बात कर रहे हो, बांग्लादेश वाले ढाका. सोहम, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी. यस, अच्छा बांग्लादेश वाले ढाका गए हो क्या, कि आपको ढाका बहुत क्लीन लग रहा है या कहीं पढ़ा है ढाका ज्यादा क्लीन है. दिस प्रोग्राम इज शॉर्ट इन द, वेरी गुड, हाउ वेरी गुड man. How many classes will you take in between 6 days of exam? How many classes will you take in between 6, कौन से exam. Sikkim is the पक्का efforts मतलब genuine efforts in lieu of ersatz ones, false ones need to be put in for giving this program a shot in the arm. अच्छी बात है, बहुत अच्छा से लिखा है, लेकिन ध्यान रखना है ना अभिषेक ये भी ध्यान रखना है. नो डाउट आप बहुत एक दो चीज ध्यान रखना है. नो डाउट आप बहुत अच्छे से वोकैब को यूज कर रहे हो. क्या लिख रही हूँ मैं, वोकैब को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ना अभिषेक के लिए है कि ऐसा भी चीजों को नहीं लिखना है ना कि सामने वाले को समझ में ना आए. आप ना देखो 2 तरह से ऐसे लिखा जाता है. ओके, अभिषेक के लिए बोल रही हूँ मैं कि वर्ड पावर यूज करना है. आपने बहुत अच्छे से यूज किया. एडसैट्स का मतलब होता है जो जेन्युइन नहीं है, फॉल्स है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ना कि ऐसा भी शशि थरूर टाइप वाला वर्ड पावर नहीं कर देना है ना जब सामने वाले को बहुत ज्यादा मतलब नहीं समझ में आए ना, तो मतलब वो क्या करेगा ना, नंबर देना नहीं चाहेगा.
तो आप लिखो, बहुत अच्छी बात है, लिखो, चीजों को अच्छे से लिखो, लेकिन अच्छे से। ऐसा वर्ड पावर लिखना है ना, वर्ड पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, फिनिश के साथ लिखिए, बट ऐसा वर्ड पावर होना चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए। क्योंकि कई बार ना ये मैंने देखा है, सीबीएसई वाले, अरे क्या है, सीबीएसई वाले कई स्टूडेंट्स ना जो बहुत अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, अच्छे से वर्ड पावर एकदम लिख के आ जाते हैं और उनका नंबर कम हो जाता है। तो वर्ड पावर लिखिए, ठीक है अभिषेक, वर्ड पावर लिखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लिखना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, सिर्फ वर्ड्स के साथ खेलना नहीं है ऐसे में। ओके, उन्हें लगने लगेगा ना कि इसके पास कंटेंट नहीं है, क्या है ये कुछ। हाँ, आई विल ट्राई नॉट टू रफल द एग्जामिनर्स फॉर फेदर, ये ध्यान रखना है। ओके, क्या है आज कुछ सिक्योर कनेक्शन, आज कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, नया फीचर है। मेरी वर्ड पावर वीक है, कोई बात नहीं है, वीक है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो, स्वच्छ भारत, जुमान जी क्या बोलना चाह रहे हैं? सब पिन हो गया ना, ये देख रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ, सब पिन हो गया। चाइल्ड लेबर तो कर लिया है हमने, वो तो हो गया, सब कहीं में पिन हो गया, पता नहीं इधर उधर कुछ हो गया होगा। प्राइवेटाइजेशन, अब बून और अब बेन, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अच्छा तरह तरह के आए हैं सब। अब मुझे बताओ कौन बोलेगा कि और क्या क्या लिखा जा सकता है, और क्या क्या स्वच्छ भारत में, मुझे और भी कुछ बताओ जो डेटा वगैरह आपके पास हो कुछ, कौन बोलेगा एक बार बताना। स्वच्छ भारत इज अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी फॉर हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी, अच्छा, इंक्रीज द टूरिज्म एंड हेंस रेवेन्यू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्वच्छ भारत इज, हाँ कौन बोलना चाहेगा एक बार स्वच्छ भारत पे एक बार बताइए। अमन बोलेंगे। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। यस गुड आफ्टरनून अमन, स्वच्छ भारत पे बोलेंगे मैम, इसके लिए तो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, फिर भी मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए, और क्या क्या ऐड किया जा सकता है, अगली बार बच्चे स्वच्छ भारत लिख के लाएंगे। जी मैम, फर्स्टली कि आप स्वच्छ भारत मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुई थी, इसके तहत ये मुद्दा रखा गया था कि किसी तरह स्वच्छता को बढ़ाया जाए, लोग तक इस अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि वो लोग अवेयर हो सके कि स्वच्छता कैसी रखनी चाहिए, ताकि इससे ये भी होता है कि टूरिज्म अट्रैक्ट होती है। जब टूरिज्म अट्रैक्ट होंगी तो उससे हमारे जीडीपी में ग्रोथ होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जिससे हमारी जीडीपी बहुत अच्छी होगी और दोस्त हमारा जो देश है नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकता है अच्छे से और दूसरे देशों को भी बीट कर सकता है। वहीं दूसरी बात रखा जाए तो सैनिटाइजेशन जो होती है अच्छी रहनी चाहिए हर जगह। कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारी गर्ल्स महिलाएं या फिर गर्ल्स की ही बात करें तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि पुअर सैनिटाइजेशन होती है, वो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, वो इन्फेक्शन हो सकती है, इसी के लिए बहुत सारे ड्रॉप आउट करते हैं और बहुत इसीलिए लिटरेसी रेट जो फीमेल की देखी गई है भारत में कम है, क्योंकि मोस्टली तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट इस ऐसे में, ये पॉइंट जो मैंने अभी ऐसे दिया उसमें ऐड नहीं था। आप ड्यू टू सैनिटेशन, इम्प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, गर्ल्स का ड्रॉप आउट हो जाता है स्कूल से, ये सब आप ऐड कर सकते हो बहुत अर्ली एज में, एंड ड्यू और इलिटरेसी गर्ल्स के बीच में, यस ये आप डाल सकते हो। और बोलिए। और वहीं देखा जाए तो जैसे बहुत सारी सरकारी कार्यालयों में लोग पान खाते हैं और बहुत सारे ऐसे मद्यपान का सेवन करते हैं और कहीं भी थूक देते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे जो एलियोर पर्सन होते हैं जो वहां पर आके काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि हम अपने माता पिता के साथ वो उस जगह जा भी नहीं पाते, खासकर जैसे हमारे माता पिता जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, अगर वो वहां जाते हैं तो और भी उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो सकती है इन सभी चीजों से, मेडिकल हेल्थ। यस मैम। और सैनिटाइजर तो एक्चुअली हर जगह नीडेड मैम, मेरे नजर में तो अभी यही याद है मैम। ओके चलो, और क्या, और भी कुछ बोलना चाह रहे हो? मैम मेरा भी एक फार्म और लॉ पर लिखा था और एक लेटर लिखा था, बस मुझे ये जानना मैम कि वो फॉर्मेट सही है या नहीं। क्या पे लेटर लिखा है? फार्म लॉ पे लेटर लिखा है मैंने, मैम देख सकते हैं उस पर मैंने एक एमएलए को लेटर लिखा है जिसमें स्टेट डॉग मिनेंस के बारे में बताया है। अमन ना? जी मैम, लेटर एंड एसे बोथ मैम। अच्छा, it will also it will, क्या लिखा है, it will also, ग्रामर का एरर यहीं पे डाल दिया आपने, विल के साथ मॉडल वर्ब के साथ V1। ठीक है, आपका लेटर बट कर आया है, कौन वाला पहला है? फॉर्म फिल
अभी और नीचे जाना हो, कौन सा पहला सबसे नीचे से सेकंड ऊपर मैम, सबसे एबीसी नीचे से से? स्टार्ट होगी। हाँ तो आपका फॉर्मेट ये वाला है। ये तो फार्म बिल है मैम, ये भी पढ़ सकती हैं। इंडिया इज मतलब ये फार्म बिल वाला डाला है आपने? यस मैम। तो चलो एक बार मैं पढ़ रही हूँ, एक बार देख लो। ओके, फार्म बिल वाला सब देखो। इंडिया इज अ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री। एक बार आप पढ़ो। यस मैम। एक बार आप पढ़ो। Farm Bill. India is an agricultural dominated country. Almost 70% of the Indian populations are directly and indirectly involved in agricultural activities. Today, we get our food only because of arduous work of farmers. But today, farmers entangled in starvation and poverty. On 17 September 2020, 3 bill introduced in Lok Sabha by the Ministry of Agriculture. एक मिनट क्या है? पढ़िए एक बार फिर से स्लाइड। On 17 September 2020, 3 bill introduced in Lok Sabha by the Ministry of introduced ना? Oh sorry, yes ma'am, भी थर्ड आया है। हाँ, पैसेज में जाना चाहिए, चलिए। Yes ma'am, by the Ministry of Agriculture and Food Minister Narendra Singh Tomar on Farm Bill. The bill are first farmer protection and empowerment of price insurance, in which farmers should be encouraged and assured their price of their commodities. Second, farmers produce trade and commerce promotion and facilitation, where trade relation through APMC would grow better. Third, Essential Commodities Act 2020. In this, government remove oilseed, edible oil, potato, onion from essential commodities. On the same date, Lok Sabha passed the bill. From this bill, farmers are allowed to sell their produce to other state also. It will also enables to sell their produce direct to corporate company. It will enables क्यों लगाया है? It will also enable से मैम। एस नहीं लगाना है ना, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगेगा। इट विल ऑल्सो एनेबल। ठीक है, यस मैम। मॉडल वर्ब के साथ V1 लगेगा ना, इट विल ऑल्सो एनेबल। यस मैम। ऐसा हटा देना। ओके मैम। To sell their produce direct to corporate company. For this, farmers get higher prices than usual. Government says that they will double the income of farmers by 2022. But farmers still pall the fears. They were frightened about the future of APMC and the mandi would be eliminated. Although the government on 20 September 2020 enacted the law on the farm bill by the sign of the president. Government should listen the concern of the farmers and made a government should listen to the concern. ठीक है, listen to मैम should तो मॉडल पर है ना, तो हाँ तो government should listen के साथ हमेशा to आता है, आपको तो पढ़ाया है। यस सॉरी मैं भूल गया, फ्लो में मैं भूल जाता हूँ मैं। ओके, गवर्नमेंट शुड लिसन टू कंसर्न ऑफ फार्मर्स एंड मेड अ शाफ्ट फॉर फार्मर्स फॉर बेटर वेल बीइंग। दैट्स ओके, चलो फार्म बिल में ना, फार्म बिल में चलो मैं और भी बच्चों से बात करूंगी, और भी मुझे आइडियाज और भी डाले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब और भी थोड़ा सा इसको इलेबोरेट में लिखा जा सकता है। मैं बाकी सारे बच्चों से जब डिस्कस कर लूंगी ना, तब आपको और भी आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, ओके ओके मैम। अभिषेक बोलना चाह रहे हैं। हेलो अभिषेक हैज मिस्ड। ये सब नेक्स्ट क्लास आप क्या करोगे ना, अभी मैं वीरेंद्र बोलना चाह रहे हैं। मिस हो रहा है। हेलो हेलो यस सुमित बोलिए, टॉपिक को बोलना चाह रहे हैं। मैम ऐसे तो मैंने सिर्फ ड्रग अब्यूज पे ही लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में? मैम इंग्लिश में। इंग्लिश में तो बोलिए। और एक मिनट में बिफोर यू स्टार्ट स्टूडेंट्स को बोल दो, कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं तो ये बैच आपके लिए नहीं है, ये तो डिस्क्रिप्टिव का बैच है। ठीक है, और जो नए वाले स्टूडेंट्स है ना, जो अनअकैडमी का अभी तो 22% ऑफ जा रहा था, तो काफी सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो मैं जो न्यू वाले एडमिशन वाले बच्चे हैं ना, विधि और भी कुछ दिख रहे हैं, आप लोग क्या करना, परसों कौन सा डेट है, 5 जनवरी से 3:30 बजे का बैच ज्वाइन करना। ठीक है, आप 5 जनवरी से 3:30 बजे का बैच ज्वाइन करोगे।
और रात वाला बैच ये एकदम ग्रामर का बैच है, नया टॉपिक होगा वहां से करना, न्यू वाले स्टूडेंट्स, न्यू वाले। और आज वोकैब का बैच है रात को 8 बजे से, जो कि पहले से स्टार्ट हो चुका है, बट वोकैब आप कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जो छुटा है उसको कर लीजिएगा रिकॉर्डेड देखकर। ओके, चलिए स्टार्ट करिए सर। Drugs take you to hell disguised as heaven. Drugs are the psychoactive substance or combination of substance that alter the state of mind in a way that you cease to see the reality about what is happening with your life. When drugs are consumed in a form of overdose, the term drug abuse is applicable. There is a gross death of 11.8 million people globally each year. According to the data of National Crime Records Bureau in India, 2,300 people died in 2017 and 19 due to the overdose of drugs. Drugs are legal and illegal too. Legal ones are used to cure diseases as per the prescription of doctors. There are variety of reasons which make people susceptible to drug abuse. Peer pressure lead youth to fall in this trap. The prime cause of people consuming drugs is escaping from reality and depression. Intake of drugs helps them coping situations, which in turn generates dopamine and people get addicted to it. Many a time, people take it just for fun to ostentate or flaunt their wealth. The toll of drugs are equally perilous. It ruins the personal as well as professional relationship. The addicts generally fall in debt trapped as drugs are generally expensive. Eventually, they indulge into criminal activities and are legally hauled into court. Drugs disrupt the mental well-being of addicts. Government has taken different steps to curb this menace by formulating NADDR, National Action Plan for Drug Demand Reduction, under Ministry of Social Justice and Empowerment. Even the Article 47 of our Constitution conspicuously states that the state shall endeavor the awareness of nutrition and prohibit intoxicating drinks and drugs. The will to not fall prey to such addictions in life is the only way to save ourselves from being prematurely dead. As we know, prevention is better than cure. मैम यही था। ओके ओके, चलो ठीक है। कितने वर्ड्स के थे मैम? 290 वर्ड्स। ओके, चलो गुड। मैम नाइन्थ हेलो हेलो हेलो, यस मैम। मैम 9 जनवरी को एग्जाम है CHSL वाला ऑन डिस्क्रिप्टिव। ओके, 9 जनवरी मतलब सैटरडे को है ना? नहीं, संडे। मैम संडे है। संडे है, हाँ। तो क्या है उसके पहले, देखो उसके पहले हमारा एक नेक्स्ट वाला कोविड पे मैं करवाऊंगी, और जितना पढ़ के जा रहे हो काफी है, ऐसे तो अनएंडिंग है। मैम प्रिपेयर बहुत किया, बट ये थोड़ा अनसर्टेन रहता है ना, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। डरना नहीं है। लिखा ऑलमोस्ट। हाँ बोलिए। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक जितना कवर कर सकते थे ना, हर टाइप का टॉपिक, जनरल, फिर जितना भी टाइप का इशू हो जाता है, सोशल, फिर साइंस टेक्नोलॉजी, आपने पढ़ लिया है। देखो आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा है, आपने सोशल में वुमेन और रिलेटेड पढ़ा है, तो उसके लिए डर, ऐसे तो आप 250 300 ऐसे भी करके जाओगे तो डर तो रहेगा, वो लिख लोगे आप। बस मेन है ना, सब टॉपिक पे कर करके जाना, एक का आइडिया दूसरे में आराम से फिट कर सकते हो। यस मैम। ऐसा थोड़ी होगा कि एकदम जो वो लकी होते हैं कि जैसा पढ़ के यार ठीक वही आ गया। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसके लिए डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, ओके मैम। ओके। हाँ, एक ये था, आज हमने एक ऐसे किया, स्वच्छ भारत किया है। ठीक है, हमने स्वच्छ भारत का भी एक लेटर देख लिया। हमने स्वच्छ भारत किया है। स्वच्छ भारत वाला जितना भी क्लेनलीनेस या सैनिटेशन से जो भी ऐसे आएगा वहां पे आप लिख लो। चलो एक लेटर करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे फिर से प्रेसी। एक प्रिंसिपल को एक एग्जाम में आया है। ठीक है, एक एग्जाम में राइट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स वेयर को बता रही हूँ कौन वाला। एक ये भी आया है, लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर लिखना है एडिटर को लेटर लिखना है कि इररेलेवेंट बेतुके न्यूज के कैसे सोशल नेटवर्क में गलत न्यूज फैलाया जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या परिणाम हो रहा है। और एक चीज और है कि जो बच्चे इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं है ना, जैसे सलोनी कोई थे, तो आप हिंदी में लिखो ना। आपके पास बैंक का एग्जाम थोड़ी है, बैंक में इंग्लिश में लिखना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख दोगे तो ज्यादा नंबर आ जाए, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप लिखिए। ओके, कोविड पे मैं अभी नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा। इररेलेवेंट न्यूज फैल रहा है सोशल मीडिया की वजह से। ये तो आप एडिटर को लेटर लिखना है, तो आप ऊपर में अपना एड्रेस डालिएगा, कोई भी डाल दीजिएगा, जो एड्रेस दिया, कोई भी नहीं, वो एड्रेस आपका दिया रहेगा। आपको अपना एड्रेस
सेंडर का एड्रेस, सेंडर एड्रेस मतलब जो भेज रहा है, मतलब आपका एड्रेस, आप लेटर लिख रहे हो ना, आपका एड्रेस वो दिया रहेगा, ठीक है, आपके दिया रहेगा, वो लिख देना, ओके। और फिर लिखना, फिर जिस दिया रहेगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदू या द एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, ये तो मैंने ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया, आपके एग्जाम में दिया रहेगा, तो पूरा जब एड्रेस लिखना हो ना तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, एड्रेस आपके सेट में दिया रहेगा, आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, किसको लिखना है, एडिटर, कौन से एडिटर को, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का, वो भी दिया रहेगा, और कौन सा एडिशन है, दिल्ली एडिशन, यूपी, कहीं का भी एडिशन होगा, और लास्ट में आपको क्या बन के लिखना है ना, वो भी दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने एक नाम डाल दिया, ठीक है। अगर आपका नाम नहीं मेंशन है, वो लिख देंगे कि आप मिस्टर राम बन के लिखना, मिस्टर मोहन बन के लिखना। अगर आपको नाम नहीं दिया है ना तो XYZ भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, अगर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है ना तो अ रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो लोकेलिटी, कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आपको अगर सिक्योरिटी कारण की वजह से एड्रेस नहीं देना है, नाम, लेकिन अगर वो उन्होंने लिखा होगा कि आपको राहुल बन के लिखना है तो यहाँ पे राहुल नाम नहीं तो नंबर कट जाएगा। अगर आप मिस्टर गुप्ता बन के लिखना है तो आप मिस्टर गुप्ता लिखना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो रेसिडेंट ऑफ सदर बाजार लोकेलिटी, ठीक है। CGL Tier 3 और CHSL Tier 2 एक ही पैटर्न है, ऐसे और लेटर का पैटर्न थोड़ी होता है, सबके लिए सेम। तो यहाँ पे लिखोगे, पहले अपना एड्रेस दे देना, डेट वगैरह दे देना, फिर लिखना एकदम सेम लाइन में, सब सेम लाइन में जाए। एड्रेस के लिए चिंता नहीं करना है, वहां पे दिया हुआ मिलेगा आपको। सदर 150 वर्ड्स में लिखना है, ये तो ज्यादा वर्ड्स में लिखना ही है। आप अपना एड्रेस दे देना जो दिया रहेगा आपके एग्जाम में। उसके बाद एडिटर को जब भी लिखना रहेगा, टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, और ये एक इनफॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर में तो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट में छोटा सा नाम, इम्पैक्ट ऑफ इररिलेवेंट न्यूज थ्रू सोशल मीडिया, आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, उसी को शॉर्ट करके उठा देना। यस, और न्यूज़पेपर में तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये तो न्यूज़पेपर में सब जगह फिट कर लोगे, ओके। सब्जेक्ट लिखना कि किस बारे में लिख रहे हो, ओके। और सर लिखना, सर, कॉमा देना, अब शुरू किया यहाँ से लेटर, सीधा लाइन में लिखना। हाँ, अब ये वाला तो मैंने बोला है हर जगह फिट कर देना, यहाँ पे डाला नहीं है, थ्रू द कॉलम्स, न्यूज़पेपर में तो ये चिपका ही देना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये तो पहले भी बता चुकी हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर कंसर्न, या आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, या थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, through the columns of this newspaper I would like to draw your attention to, I would like to express my concern, attention के साथ to लगा देना, concern over the impact of insignificant and extraneous, relevant की जगह ना, relevant के जगह आप ये word लिखोगे ना तो irrelevant की जगह extraneous का मतलब है बेतुका, I would like to draw, ये सब में लिख देना। पर्सनल लेटर कौन सा लेटर होता है भाई, कौन सा पर्सनल लेटर लिख रहे हो? मैंने तो दो टाइप का लेटर सुना है, एक ऑफिशियल है और एक अनऑफिशियल। पर्सनल लेटर क्या होता है जरा बताना तो, और किसको लिखते हैं हम लोग पर्सनल लेटर? कौन सा इतना पर्सनल है पर्सनल लेटर? फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होता है, और आप जिसको पर्सनल मान रहे हो ना वो इनफॉर्मल लेटर में ही आए, इनफॉर्मल। यस, नेशन वांट्स टू नो रिलेटिव्स को, अच्छा रिलेटिव्स वगैरह को, ओके। हेट लेटर आएगा, लव लेटर, हेट लेटर, ब्रेकअप लेटर। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इररेलेवेंट, उसमें तो इररेलेवेंट लिखा है बेतुका, आप लिख देना एक्सट्रेनियस न्यूज। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इनसिग्निफिकेंट एंड एक्सट्रेनियस न्यूज विच डिसेमिनेट्स थ्रू सोशल मीडिया। डिसेमिनेट का मतलब है जो सोशल मीडिया के थ्रू फैलता है, ओके। प्यारी सुमन लिख रहे हैं द न्यूज। हाँ डियर, सबकी प्यारी ही सुमन है। हैव यू रिसीव्ड माई, अच्छा वो सुमन मैं समझ गई क्यों बोल रहे हो। हैव यू रिसीव्ड माई पिजन, पता चला ना कि दूसरा सुमन का पिजन किसी नितेश्वर की जगह शिवम के पास पहुंच गया। इट हैज बिकम द कॉज ऑफ अनरेस्ट, ये इररेलेवेंट न्यूज की वजह से ना लोगों में वॉयलेंस और अनरेस्ट, ओके, हिंसा और अनरेस्ट फैल गया है। The news regarding spiritual leaders and celebrities are being spread rampantly, मतलब बड़े पैमाने पे spread हो रहा है, even without giving a thought. The false information results in rampages, destruction, which results in loss of life and property. Some people deliberately wish to cause ruckus. Some people deliberately wish to cause ruckus and spread such news. Okay, spread such news.
Mob lynchings are becoming a common scenario these days with respect to the ones who carry cows and fake news through social. ये मैंने करवा दिया है क्या? ये मैंने करवा दिया है। हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे अभी पढ़ के लग रहा है, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हो गया है ये, बोलना चाहिए ना, अगर हो गया है तो। अरे मेरा लेटर पढ़ लीजिए ना, अभी तो मैं पढ़ लूंगी, पढ़ा ही नहीं जा रहा है। मुझे अब देखना होगा कि 3:30 बजे की क्लास में प्रॉपरली ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊं। मॉब लिंचिंग सब कॉमन सिनेरियो हो गया है दीज डेज। काउज एंड फेक न्यूज जो फैल रहा है, पीपल के अंदर डाउट आ रहा है, कैरिंग काउज कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। आज मैं लिख के लाया हूँ, ओके। नेशन हो गया, लग रहा है मुझे, पढ़ते पढ़ते ना लग रहा है कि ये हो गया है मुझे ना। हाँ, रेस्ट की बहुत प्रॉब्लम है, ठंड लग गई लग रहा है, घर में रह रहे के ठंड सब हो गया, साइनस प्रॉब्लम है, सिर दर्द, जुकाम सब हो गया, सब हो गया। चलो छुट्टी कर दी जाए, ठीक है, छुट्टी कर दी जाए, तो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट का 3:30 बजे तक, लेकिन क्लास तो लेना ही है, क्लास लेना ही है। अब आप क्या करके आओगे? हाँ, अब आप क्या करके आओ? दिल्ली में ठंड भी बहुत है ठंड। स्टीम ले लीजिए ना। नहीं, मैंने फील किया कि साइनस में ना, पता नहीं क्यों मैंने स्टीम लेती हूँ तो चीजें और भी एग्रेवेट हो जाती। कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मेडिसिन खाना है तो सब गड़बड़ हो जाए। दिल्ली में ठंड वगैरह भी बहुत है, बहुत लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और हाँ, यूट्यूब में कल क्लास होगी, कल यूट्यूब पे मैंने कोशिश तो करूंगी कल क्लास लेने की। चलो फिर एंड किया जाए। अब आप स्वच्छ भारत लिख के आना, नेक्स्ट क्लास स्वच्छ भारत लिख के आना। ये मत, अभी तो मैंने पिछले बैच का 2 क्लास आया है, मैं देख लूंगी आपके नीड के अनुसार ना, मैं और भी डिस्क्रिप्टिव के क्लासेस ऐड कर दूंगी। ये मत समझना ये तो मेरे हाथ में है, जो हमारे सीजीएल वाले बच्चे हैं। ओके, टेक करना है, बेस्ट है रे सिद्धांत। आई एम नॉट अ पर्सन ना कि मुझे कोई बोले सो जाओ अचानक। आई एम नॉट अ पर्सन जिसको 5-10 मिनट के लिए नैप आता हो या नींद आता हो। मैं सोऊंगी तो रात में 11-12 बजे। ओके, इवन इफ आई ट्राई ना, तो फिर भी नहीं नैप। ठीक है, चलो एंड करते हैं। मैं क्लासेस और भी डाल दूंगी, नो नीड टू वरी, मैं क्लासेस में और भी डाल। चलो, थैंक यू एवरीवन। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।